Interpersonal counseling is a part of psychodynamic therapy, and so it is derived from psychoanalytic theory of Freud with its emphasis on unconscious and childhood experiences. Interpersonal काउंसलिंग साइकोडायनेमिक थेरेपी का एक हिस्सा है और यह फ्रायड के साइकोएनालिटिक सिद्धांत से निकला है, जिसमें अवचेतन मन और बचपन के अनुभव पर विशेष जोर दिया जाता है. Symptoms and personal difficulties are regarded as arising from deep unresolved personality और character problems. लक्षण और व्यक्तिगत कठिनाइयां गहरी अनसुलझी व्यक्तित्व या चरित्र समस्याओं से उत्पन्न मानी जाती हैं. Psychoanalytic counseling is the time consuming and is a long-term method of treatment, and the results are also very slow. Therefore, now it is not in much use. साइकोएनालिटिक काउंसलिंग समय लेने वाली और लंबी अवधि की उपचार पद्धति है और इसके परिणाम भी बहुत धीमे होते हैं, इसलिए अब यह ज्यादा उपयोग में नहीं लाई जाती. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. Interpersonal counseling is designed to help the patient master the context and uses the connection between the onset of depressive symptoms and current interpersonal problems as a practical and common sense treatment focus. इंटरपर्सनल काउंसलिंग रोगी को अपने संदर्भ को समझने में मदद करने के लिए बनाई गई है और उदासी के लक्षणों की शुरुआत तथा वर्तमान पारस्परिक समस्याओं के बीच संबंध को उपचार का व्यवहारिक और आम सेंस आधारित आधार बनाती है. थेरेपी इज फोकस्ड rather than non-directive and deals with current, not past interpersonal relationships. यह थेरेपी नॉन डायरेक्टिव होने के बजाय फोकस्ड होती है और अतीत नहीं बल्कि वर्तमान पारस्परिक संबंधों पर काम करती है. द फोकस इज इंटरपर्सनल rather than इंट्रासाइकिक और कॉग्निटिव बिहेवियरल. इसका ध्यान अंतर्व्यक्तिगत पहलुओं पर होता है, न कि मनोवैज्ञानिक आंतरिक प्रक्रियाओं या संज्ञानात्मक व्यवहारिक पहलुओं पर. Essentially, the counselor needs to consider 3 questions. मूल रूप से काउंसिल को 3 प्रश्नों पर विचार करना होता है. नंबर 1, are the client's problem amenable to and best treated by a psychological therapy? क्या क्लाइंट की समस्याएं मनोवैज्ञानिक थेरेपी से ठीक की जा सकती हैं और क्या यह सबसे उपयुक्त तरीका है? नंबर 2, is this client likely to benefit from, ready for and motivated to use a psychological therapy? क्या यह क्लाइंट मनोवैज्ञानिक थेरेपी से लाभ पाने और उसे अपनाने और उसके लिए प्रेरित होने की स्थिति में है? नंबर 3, is IPC the most suitable psychological approach? क्या interpersonal counseling सबसे उपयुक्त मनोवैज्ञानिक तरीका है? A client's motivation and expectations are critical factors for a successful outcome with psychological treatments. मनोवैज्ञानिक उपचारों में सफलता के लिए क्लाइंट की प्रेरणा और उम्मीदें महत्वपूर्ण कारक होती हैं. Motivation is a dynamic variable that may vary with treatment successes or disappointments. प्रेरणा एक बदलने वाला कारक है जो उपचार की सफलता या असफलता के साथ बदल सकता है. Appropriate realistic expectations of the treatment and the client's ability to be introspective, self-reflective and reality oriented will also influence the likelihood of success. उपचार के प्रति उचित और यथार्थवादी अपेक्षाएं तथा क्लाइंट की आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन और वास्तविकता उन्मुख होने की क्षमता भी सफलता की संभावना को प्रभावित करती है. The IPC approach depends on the principle that life events and the social environment affect mood and that mood can affect social and interpersonal functioning and one's response to the environment. IPC का आधार उन सिद्धांत पर है कि जीवन की घटनाएं और सामाजिक वातावरण मूड को प्रभावित करते हैं और मूड बदलने में सामाजिक व पारस्परिक कार्यक्षमता और वातावरण के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है. Treatment with IPT is based on the premise that depression occurs in a social and interpersonal context that must be understood for improvement to occur. IPT का उपचार इस आधार पर है कि अवसाद सामाजिक और पारस्परिक संदर्भ में उत्पन्न होता है और सुधार के लिए इस संदर्भ को समझना आवश्यक है. In the first session, psychiatric history includes a review of the
client's current social functioning and current close relationships, their pattern and their mutual expectations। पहले सत्र में मनोवैज्ञानिक इतिहास में क्लाइंट की वर्तमान सामाजिक कार्यक्षमता और करीबी संबंधों, उनके पैटर्न और परस्पर अपेक्षाओं की समीक्षा शामिल होती है। Changes in relationships prior to the onset of symptoms are clarified, such as the death of a loved one, a child leaving home, और worsening marital conflict। लक्षणों के शुरू होने से पहले संबंधों में आए बदलावों को स्पष्ट किया जाता है, जैसे प्रियजन की मृत्यु, बच्चे का घर छोड़ना या वैवाहिक संघर्ष का बढ़ना। Treatment with IPC, however, is sometimes combined with drug therapy, particularly when the client suffers from such mood disorders as depression, dysthymia और bipolar disorder। आईपीसी का उपचार कभी-कभी दवाइयों के साथ मिलाकर किया जाता है, खासकर जब क्लाइंट अवसाद, डिस्थोमिया या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे मूड विकारों से पीड़ित हो। Since the interpersonal therapy model was developed for the treatment of depression and then modified for use with the other populations and mental disorders, an understanding of IPT's approach to डिप्रेशन इज क्रूशियल। क्योंकि इंटरपर्सनल थेरेपी मॉडल मूल रूप से अवसाद के उपचार के लिए बनाया गया था और बाद में अन्य समूहों व मानसिक विकारों के लिए संशोधित किया गया, इसलिए अवसाद के प्रति आईपीटी के दृष्टिकोण को समझना महत्वपूर्ण है। इंटरपर्सनल थेरेपिस्ट फोकस ऑन द फंक्शनल रोल ऑफ डिप्रेशन rather than on its etiology or cause, and they look at the ways in which problematic interactions develop when a person becomes depressed। इंटरपर्सनल थेरेपिस्ट अवसाद के कारणों या उत्पत्ति पर नहीं, बल्कि उसकी कार्यात्मक भूमिका पर ध्यान देते हैं और यह देखते हैं कि अवसाद होने पर समयाग्रस्त अंतःक्रियाएं कैसे विकसित होती हैं। द आईपीटी फ्रेमवर्क कंसीडर्स क्लिनिकल डिप्रेशन as having three components: the development of symptoms, social interaction and personality। आईपीटी ढांचा नैदानिक अवसाद को तीन घटकों वाला मानता है: लक्षणों का विकास, सामाजिक अंतःक्रिया और व्यक्तित्व। आईपीटी intervenes at the level of symptom formation and social functioning and does not attempt to alter aspects of the client's personality। आईपीटी लक्षणों के निर्माण और सामाजिक कार्यक्षमता के स्तर पर हस्तक्षेप करता है और क्लाइंट के व्यक्तित्व के पहलुओं को बदलने की कोशिश नहीं करता। आईपीटी इज अ साइको एजुकेशनल इन नेचर टू सम डिग्री। कुछ हद तक आईपीटी का स्वभाव मनोशैक्षणिक होता है। इन्वॉल्व्स टीचिंग द क्लाइंट अबाउट द नेचर ऑफ डिप्रेशन एंड द वेज दैट इट मैनिफेस्ट इन हिज और हर लाइफ एंड रिलेशनशिप्स। इसमें क्लाइंट को अवसाद की प्रकृति और यह उनके जीवन और संबंधों से कैसे प्रकट होता है इसके बारे में सिखाना शामिल है। इन द इनिशियल सेशंस डिप्रेसिव सिम्टम्स आर रिव्यूड इन डिटेल एंड द एक्यूरेट नेमिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज एसेंशियल। शुरुआती सत्रों में अवसाद के लक्षणों की विस्तार से समीक्षा की जाती है और समस्या का सही नामकरण अत्यंत जरूरी होता है। द थेरेपिस्ट देन एक्सप्लेन्स डिप्रेशन एंड इट्स ट्रीटमेंट एंड मे एक्सप्लेन टू द क्लाइंट दैट ही और शी हैज अडॉप्टेड द सिक रोल। इसके बाद थेरेपिस्ट अवसाद और उसके उपचार को समझाते हैं और क्लाइंट को बता सकते हैं कि उसने बीमार भूमिका अपना ली है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक रोल इज derived from the work of sociologist Talcott Parsons and is based on the notion that illness is a social role that affects attitudes and behaviors। बीमार भूमिका की अवधारणा समाजशास्त्री टैलकॉट पार्सन्स से ली गई है और यह विचार पर आधारित है कि बीमारी केवल एक स्थिति नहीं, बल्कि एक सामाजिक भूमिका है जो व्यक्ति और उसके आसपास के लोगों के दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करती है। Over time, the client comes to see that the sick role has increasingly come to govern his or her social interactions। समय के साथ क्लाइंट समझने लगता है कि बीमार भूमिका उसके सामाजिक संबंधों और व्यवहार को नियंत्रित करने लगी है। Behavioral therapy। Behavioral therapy is used to counsel people with depression by focusing on external behavior rather than the internal cognitive processes that stimulate the behavior। व्यवहार थेरेपी का उपयोग अवसाद से ग्रस्त लोगों को परामर्श देने के लिए किया जाता है, जहां ध्यान बाहरी व्यवहार पर होता है, न कि उन आंतरिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर जो व्यवहार को उत्प्रेरित करती हैं। The key
to this method of counseling lies in the fact that the person is depressed because of one's behavior and that changing behavior will control the feelings associated with depression. इस परामर्श पद्धति का मुख्य आधार यह है कि व्यक्ति अपने व्यवहार के कारण अवसादग्रस्त होता है और व्यवहार में बदलाव अवसाद से जुड़े भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है. Behavioral changes can produce quite significant results in some people, but it still leaves the underlying issues and causes of depression unexplored. व्यवहार में बदलाव कुछ लोगों में महत्वपूर्ण परिणाम दे सकते हैं, लेकिन यह अवसाद के मूल कारणों और गहरी समस्याओं को अनछुआ छोड़ देता है. 3.9.3 Cognitive Therapy. Cognitive therapy is the opposite of the behavioral technique. संज्ञानात्मक थेरेपी व्यवहारवादी तकनीक के ठीक विपरीत होती है. This form of counseling seeks to find the solution in patient's thought processes. परामर्श का यह रूप समाधान को रोगियों की सोच प्रक्रिया में खोजने का प्रयास करता है. Cognitive counseling seeks to change negative thoughts such as pessimism, hopelessness, self-criticism, and unrealistic outlooks and expectations. संज्ञानात्मक काउंसलिंग नकारात्मक विचारों जैसे निराशावाद, हताशा, आत्म आलोचना और अवास्तविक दृष्टिकोण व अपेक्षाओं को बदलने का प्रयास करती है. The key to successful cognitive therapy is learn to distinguish between the really important issues affecting one's life and the minor or even trivial issues. सफल संज्ञानात्मक थेरेपी की कुंजी यह सीखना है कि जीवन को प्रभावित करने वाले वास्तव में महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं और कौन से मामूली या तुच्छ हैं. 3.9.4 Interpersonal Therapy. Interpersonal therapy is a form of counseling that attempts to locate how social interaction affects depression. इंटरपर्सनल थेरेपी परामर्श का एक रूप है जो यह समझने का प्रयास करता है कि सामाजिक अंतःक्रिया अवसाद को कैसे प्रभावित करती है. Interpersonal therapy does not try to place social context as a root cause of depression, but understand that the way that people react to others has a profound effect on the development of symptoms. Interpersonal therapy सामाजिक संदर्भों को अवसाद का मूल कारण नहीं मानती, लेकिन यह समझती है कि लोग दूसरों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं. इससे लक्षणों के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है. This form of counseling extends beyond actual interpersonal behavior to take into consideration such things as fantasies, fears, and anxieties and wishes as they relate to social interaction. परामर्श का यह रूप वास्तविक पारस्परिक व्यवहार से आगे बढ़कर कल्पनाओं, भय, चिंताओं और इच्छाओं तक शामिल करता है, क्योंकि ये भी सामाजिक संबंधों से जुड़े होते हैं. परामर्श का यह रूप वास्तविक पारस्परिक व्यवहार से आगे बढ़कर कल्पनाओं, भय, चिंताओं और इच्छाओं तक को शामिल करता है, क्योंकि ये भी सामाजिक संबंधों से जुड़े होते हैं. 9.5 Psychotherapy. Psychotherapy is the form of counseling that is most often associated with treating mental illness. It is the counseling that brings to mind a Freudian psychologist listening to a patient lying on a couch. मनोचिकित्सा वह परामर्श रूप है जिसे मानसिक बीमारियों के उपचार से सबसे अधिक जोड़ा जाता है. यह वही परामर्श है जो मन में उस फ्राइडियन मनोवैज्ञानिक की छवि लाता है जो सोफे पर लेटे रोगी को सुन रहा होता है. In reality, the therapist may not subscribe to Freudian theory at all. वास्तव में चिकित्सक आवश्यक नहीं कि फ्राइडियन सिद्धांत का पालन करें. The purpose of psychotherapy is to get to the core of the causes of depression. As a result, every aspect of a patient life is fair game. मनोचिकित्सा का उद्देश्य अवसाद के कारणों की जड़ तक पहुंचना है, इसलिए रोगी के जीवन का हर पक्ष जांच का विषय बनता है. The patient who chooses this form of counseling needs to be very comfortable with and confident in the therapist and be unafraid to open up and discuss even the most painful and personal aspects of one's life. जो मरीज इस प्रकार की काउंसलिंग चुनता है उसे चिकित्सक पर पूर्ण विश्वास और सहजता होनी चाहिए और जीवन के सबसे दर्दनाक तथा निजी पहलुओं को भी खुलकर साझा करने में संकोच नहीं होना चाहिए. 3.9.6 Psychodynamic Counseling.
Psychodynamic counseling is the type of therapy associated with Freudian techniques. साइकोडायनेमिक काउंसलिंग फ्राइडियन तकनीकों से जुड़ी हुई थेरेपी का प्रकार है. This form of counseling differs from psychotherapy by placing the entire emphasis on the unconscious and subconscious thought processes. परामर्श का यह रूप मनोचिकित्सा से इसलिए अलग है क्योंकि यह पूरा जोर अवचेतन और अर्धचेतन विचार प्रक्रियाओं पर देता है. Rather than attempting to locate alternative causes, psychodynamic counseling seeks specifically to uncover unresolved conflicts that develop during childhood. वैकल्पिक कारण खोजने के बजाय साइकोडायनेमिक काउंसलिंग विशेष रूप से बचपन में विकसित हुए अनसुलझे संघर्षों को उजागर करने का प्रयास करती है. The aim is to resolve these conflicts. If resolution is impossible, then the patient learns how to cope better with the conflicts. उद्देश्य इन संघर्षों को सुलझाना है और यदि समाधान संभव ना हो तो रोगी को इन संघर्षों से बेहतर ढंग से कैसे निपटना है यह सिखाया जाता है. 0.10 एप्लीकेशंस अनुप्रयोग. IPT, IPC in special populations, विशेष जनसंख्या में IPT, IPC, elderly clients, वृद्ध clients. In translating the IPT model of depression to work with different populations, the core principles and problems areas remain essentially the same with some modification. अवसाद के IPT मॉडल को विभिन्न जनसंख्या समूहों पर लागू करते समय मूल सिद्धांत और समस्या क्षेत्र लगभग समान रहते हैं, केवल कुछ संशोधनों तक. In working with the elderly, IPT sessions may be shorter to allow for decreased energy levels and dependency issues may be more prominent. वृद्ध व्यक्तियों के साथ कार्य करते समय ऊर्जा स्तर कम होने के कारण IPT सत्र छोटे हो सकते हैं और निर्भरता से जुड़ी समस्याएं अधिक प्रमुख हो सकती हैं. In addition, the therapist may work with an elderly client towards tolerating rather than eliminating long-standing role disputes. इसके अलावा चिकित्सक वृद्ध क्लाइंट के साथ पुराने भूमिका संघर्षों को समाप्त करने के बजाय उन्हें सहन करने की ओर कार्य कर सकता है. Clients with HIV infections. In IPT with HIV positive clients, particular attention is paid to the client's unique sets of psychosocial stressor. HIV positive clients के साथ IPT में उनके विशिष्ट मनोसामाजिक तनावों पर विशेष ध्यान दिया जाता है. The stigma of the disease, बीमारी से जुड़ा कलंक. The effects of being gay, if applicable, समलैंगिक होने के प्रभाव यदि लागू हों. Dealing with family members who may isolate themselves, उन परिवारजनों से निपटना जो स्वयं को अलग कर लेते हैं. And coping with the medical consequences of the disease, और बीमारी के चिकित्सीय प्रभावों से सामना करना. Adolescents, किशोर. In IPT with adolescent, the therapist addresses such common development issues as separation from parents. किशोरों के साथ IPT में चिकित्सक विकास से जुड़े सामान्य मुद्दों को संबोधित करता है जैसे माता पिता से अलगाव. The client's authority in relationship to parents, माता पिता के साथ संबंधों में क्लाइंट का अधिकार. The developmental of न्यू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, नए पारस्परिक संबंधों का विकास. फर्स्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द डेथ ऑफ अ रिलेटिव और फ्रेंड, पीयर प्रेशर एंड सिंगल पेरेंट फैमिलीज, किसी रिश्तेदार मृत्यु का पहला अनुभव, साथियों का दबाव और एकल अभिभावक परिवार. एडोलेसेंट्स आर सीन वीकली फॉर 12 वीक्स with once weekly additional phone contact between therapist and client for the first 4 weeks of treatment. किशोरों को 12 सप्ताह तक साप्ताहिक देखा जाता है और उपचार के पहले 4 सप्ताहों में सप्ताह में एक बार अतिरिक्त टेलीफोन संपर्क होता है. The parents are interviewed in the initial session to get a comprehensive history of adolescent symptoms. शुरुआती सत्र में माता पिता का साक्षात्कार लिया जाता है ताकि किशोर के लक्षणों का विस्तृत इतिहास प्राप्त किया जा सके. And to educate the parents as well as the young persons about depression and possible treatments, including a discussion of the need for medication. और माता पिता तथा किशोर दोनों को अवसाद, उसके उपचार और दवा की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करने के लिए. The therapist refrains from giving advice then
वर्किंग विद एडोलेसेंट्स। किशोरों के साथ कार्य करते समय चिकित्सक सलाह देने से बचता है एंड विल प्राइमरी यूज सपोर्टिव लिसनिंग while assessing the client for evidence of suicidal thoughts or problems with school attendance। और मुख्यतः सहायक सुनने का उपयोग करता है, साथ ही आत्मघाती विचारों या स्कूल उपस्थिति में समस्याओं के संकेतों का मूल्यांकन करता है। So far, research does not support the efficacy of antidepressant medication in treating adolescent। अब तक के शोध किशोरों में एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की प्रभावशीलता का समर्थन नहीं करते। दो मोस्ट क्लिनिशियंस will give some younger client a trial of medication if it appear to offer relief। हालांकि कई चिकित्सक कुछ किशोर क्लाइंट्स को राहत दिखने पर दवा का परीक्षण दे सकते हैं। इंटरपर्सनल थेरेपी फॉर एडोलेसेंट्स। किशोरों के लिए इंटरपर्सनल थेरेपी IPT for kids is based on the premise that depression occurs in the context of an individual's relationship regardless of its origin in biology or genetics। बच्चों के लिए IPT इस विचार पर आधारित है कि अवसाद व्यक्ति के संबंधों के संदर्भ में उत्पन्न होता है, चाहे उसका मूल कारण जैविक हो या आनुवंशिक हो। More specifically, depression affects people's relationship and these relationships further affect our mood। विशेष रूप से अवसाद लोगों के संबंधों को प्रभावित करता है और ये संबंध आगे हमारे मूड को प्रभावित करते हैं। The IPT models identifies 4 general areas in which a person may be having relationship difficulties। IPT मॉडल 4 सामान्य क्षेत्रों की पहचान करता है जहां किसी व्यक्ति को संबंधों में कठिनाई हो सकती है। Grief after the loss of a loved one, किसी प्रियजन के खोने के बाद का शोक। Conflict in significant relationships, महत्वपूर्ण संबंधों में संघर्ष। डिफिकल्टीज अडॉप्टिंग टू चेंज इन रिलेशनशिप्स और लाइफ सर्कमस्टेंसेस, संबंधों या जीवन परिस्थितियों में परिवर्तनों के अनुसार ढलने की में कठिनाई। एंड डिफिकल्टीज स्टेमिंग फ्रॉम सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलगाव से उत्पन्न कठिनाइयां। द IPT थेरेपिस्ट हेल्प्स आइडेंटिफाई एरियाज इन नीड ऑफ स्किल बिल्डिंग टू इम्प्रूव द क्लाइंट्स रिलेशनशिप्स एंड डिक्रीज द डिप्रेसिव सिम्टम्स। IPT चिकित्सक उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां कौशल विकास की आवश्यकता है ताकि संबंध सुधरे और अवसाद के लक्षण कम हो। ओवर टाइम द क्लाइंट लर्न टू लिंक चेंजेस इन मूड टू इवेंट्स ऑकरिंग इन हिज और हर रिलेशनशिप्स। समय के साथ क्लाइंट अपने मूड में बदलावों को संबंधों में घटने वाली घटनाओं से जोड़ना सीखता है। कम्युनिकेट फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशन फॉर द रिलेशनशिप, रिश्तों के लिए अपनी भावनाएं और अपेक्षाएं व्यक्त करना सीखता है। एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन टू डिफिकल्टीज इन द रिलेशनशिप, और संबंधों में उत्पन्न कठिनाइयों को हल करने के लिए समस्या समाधान करना सीखता है। क्लाइंट्स विद सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स, नशीली पदार्थ दुरुपयोग विकार वाले क्लाइंट। While IPT has not yet demonstrated its efficacy in the field of substance abuse recovery, a version of IPT has been developed for use with substance abusers। हालांकि substance abuse recovery में IPT की प्रभावशीलता पूरी तरह सिद्ध नहीं हुई है, फिर भी नशे के उपयोगकर्ताओं के लिए IPT एक संस्करण विकसित किया गया है। The two goals are to help the client stop or cut down on drug use। इसका दोहरा लक्ष्य है क्लाइंट को नशे का उपयोग बंद करने या कम करने में मदद करना। एंड टू हेल्प द क्लाइंट डेवलप बेटर स्ट्रेटेजीज फॉर डीलिंग विद द सोशल एंड इंटरपर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रग यूज, और क्लाइंट को नशे के सामाजिक और पारस्परिक परिणामों से निपटने के लिए बेहतर रणनीतियां विकसित करने में मदद करना। टू मीट दीज गोल्स द क्लाइंट मस्ट एक्सेप्ट द नीड टू स्टॉप। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्लाइंट को नशा छोड़ने की आवश्यकता को स्वीकार करना होगा। टेक स्टेप्स टू मैनेज इम्पल्सिवनेस, आवेगशीलता को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने होंगे। एंड रिकॉग्नाइज द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रग परचेज एंड यूज, और नशे को खरीदने और उपयोग करने के सामाजिक संदर्भों को समझना होगा। रिलैप्स इज व्यूड as the rule rather than the expectation in treating substance abuse disorder। Substance abuse विकारों के उपचार में पुनः गिरावट को अपवाद नहीं बल्कि सामान्य माना जाता है। And the therapist avoids treating the client in a punitive or disapproving manner when it occurs। और relapse होने पर चिकित्सक क्लाइंट के प्रति दंडात्मक या अस्वीकृति का रवैया नहीं अपनाता। Instead of therapists remind the client of the fact that staying away from drugs in the client decision, इसके बजाय चिकित्सक क्लाइंट को याद दिलाता है कि नशे से दूर रहना उसका स्वयं का निर्णय है। क्लाइंट्स विद ईटिंग डिसऑर्डर्स, भोजन के विकार वाले क्लाइंट।
IPT has been extended to the treatment of eating disorder. Eating disorder के उपचार में IPT का विस्तार किया गया है. The IPT therapist does not focus directly on the symptoms of the disorder. IPT चिकित्सक सीधे तौर पर विकार के लक्षणों पर ध्यान नहीं देता, but rather allows for identification of problem areas that have contributed to the emergency of the disorder over time. बल्कि उन समस्या क्षेत्रों की पहचान की अनुमति देता है जिन्होंने समय के साथ विकार के विकास में योगदान दिया है. IPT appears to be useful in treating clients with bulimia, whose symptoms are maintained by interpersonal issues, including social anxiety, sensitivity to conflict and rejection, and difficulty managing negative emotions. IPT bulimia वाले क्लाइंट्स के उपचार में उपयोगी लगता है जिनके लक्षण सामाजिक चिंता, संघर्ष और अस्वीकृति के प्रति संवेदनशीलता तथा नकारात्मक भावनाओं को प्रतिबंधित करने में कठिनाई जैसे पारस्परिक मुद्दों. IPT is helpful in bringing the problems underlying the binging and purging to the surface, such as conflict avoidance. IPT binging और purging के पीछे छिपी समस्याओं को सतह पर लाने में मदद करता है. Difficulties with role expectations, भूमिका से जुड़ी अपेक्षाओं में कठिनाई, confusion regarding needs for closeness and distance, निकटता और दूरी की जरूरतों को लेकर भ्रम, and deficiencies in solving social problems, और सामाजिक समस्याओं को हल करने की क्षमता की कमी. IPT also helps people with bulimia to regulate the emotional states that maintain the bulimic behavior. IPT bulimia वाले लोगों को भावनात्मक अवस्थाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है जो बुलिमिक व्यवहार को बनाए रखती हैं. Anorexia nervosa also appear to be responsive to treatment with IPT. Anorexia nervosa भी IPT से उपचार में प्रतिक्रिया दिखती है. Research indicates that there is a connection between interpersonal and family dysfunction and the development of anorexia nervosa. शोध इंगित करते हैं कि पारस्परिक और पारिवारिक गड़बड़ियों तथा एनोरेक्सिया नर्वोसा के विकास के बीच संबंध है. Therapists disagree as to whether interpersonal dysfunction causes or is caused by anorexia. चिकित्सकों ने इस बात पर मतभेद है कि क्या पारस्परिक गड़बड़ी एनोरेक्सिया का कारण है या उससे उत्पन्न होती है. IPT has been helpful because it is not concerned with the origin but rather seeks to improve the client's interpersonal functioning and thereby decreasing symptoms. IPT उपयोगी रहा है क्योंकि यह कारण खोजने की बजाय क्लाइंट की पारस्परिक क्षमता सुधारने का प्रयास करता है जिससे लक्षण कम होते हैं. IPT's 4 categories of grief, interpersonal disputes, interpersonal deficits, and role transition correspond to the core issues of clients with anorexia. IPT की 4 श्रेणियां शोक, पारस्परिक विवाद, पारस्परिक कमी और भूमिका परिवर्तन एनोरेक्सिया वाले क्लाइंट्स की मुख्य समस्याओं से मेल खाती हैं. सोशल फोबिया इज अनदर डिसऑर्डर दैट रिस्पॉन्ड वेल टू IPT थेरेपी. सामाजिक फोबिया भी एक ऐसा विकार है जो IPT थेरेपी का अच्छी तरह जवाब देता है. 3.11 इंटरपर्सनल थेरेपी IPT के उप प्रकार. इंटरपर्सनल थेरेपी IPT अवसादग्रस्त व्यक्तियों के लिए 2 प्रकार की उपचार योजनाएं प्रदान करती हैं. एक है तीव्र उपचार, एक्यूट ट्रीटमेंट. इसका उद्देश्य वर्तमान अवसाद के लक्षणों को समाप्त करना है. यह तभी किया जाता है जब व्यक्ति अवसाद की स्थिति में हो. आमतौर पर 2 से 4 महीनों तक साप्ताहिक सेशंस होते हैं और अधिकतर क्लाइंट लक्षण समाप्त होने पर उपचार रोक देते हैं. मेंटेनेंस ट्रीटमेंट IPT-M. इसका उद्देश्य आगे होने वाले अवसाद एपिसोड्स को रोकना या उसकी संख्या कम करना है. यह अधिक लंबी अवधि का उपचार है, 2 से 3 साल तक चल सकता है, जिसमें महीने में एक बार सत्र होता है. तीव्र उपचार के बाद कई क्लाइंट इसे चुनते हैं. 3.1.2 इंटरपर्सनल थेरेपी एक मेंटेनेंस दृष्टिकोण के रूप में IPT-M. IPT-M को अवसाद से उभर चुके व्यक्तियों के लिए आफ्टर केयर भी कहा जा सकता है. उद्देश्य है दोबारा अवसाद की संभावना को कम करना. IPT-M क्यों आवश्यक है? जब क्लाइंट अवसाद से ठीक होकर सामान्य जीवन में लौटता है तो जिम्मेदारियों और सामाजिक संपर्क बढ़ जाते हैं. ये बदलाव तनाव बढ़ाते हैं जिससे दोबारा अवसाद होने का जोखिम भी बढ़ जाता है. IPT-M क्लाइंट को तनाव कम करने और स्थिर बने रहने में मदद करता है. शोध क्या कहता है? जिन क्लाइंट्स को बार बार अवसाद होता है उनके लिए पूरी रोकथाम संभव नहीं है, इसलिए IPT-M अगला एपिसोड देर से
किन क्लाइंट्स के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है? गर्भवती महिलाएं दवाओं से बचने के लिए, जिन लोगों को एंटी डिप्रेशन दवाओं से साइड इफेक्ट होते हैं, बुजुर्ग जिन्हें मेडिकल समस्याओं या उम्र की वजह से दवाएं नहीं दी जा सकती। 3.13 इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स, अंतरव्यक्तिय संबंध कौशल। रिश्ते भी जीवित प्राणियों की तरह होते हैं, उनकी शुरुआत होती है, जीवन काल होता है और अंत भी होता है। रिश्ते या तो धीरे धीरे मजबूत होते हैं या समय के साथ कमजोर भी पड़ सकते हैं। अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स से क्या लाभ होता है? तनाव कम होता है, संचार बेहतर होता है, विवाद घटते हैं, समझ बढ़ती है, घनिष्ठता और खुशी बढ़ती है। काउंसलर इन कौशलों में सुधार कराकर क्लाइंट को बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करता है। काउंसलिंग में आवश्यक महत्वपूर्ण इंटरपर्सनल स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल। अच्छी बातचीत में जितना बोलना जरूरी है उतना ही सुनना भी जरूरी है। असर्टिवनेस स्किल, आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार, खुद को स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना, बिना दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन किए अपनी बात रखना। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, विवाद समाधान। विवाद स्वाभाविक है, इन्हें प्रभावी ढंग से हल करके रिश्ता बचाया और सुधारा जा सकता है। एंगर मैनेजमेंट, क्रोध प्रबंधन, गुस्सा पहचानना और सही तरीके से व्यक्त करना, इससे समस्या हल करने और लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलती है। क्लाइंट को अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स सिखाने के तरीके। बेहतर संचार के लिए समझे कि बातचीत का क्या उद्देश्य है, सूचना देना, कनेक्शन बनाना या विवाद सुलझाना। दूसरों को दोष न दे, विनम्र भाषा का प्रयोग करें। लिसनिंग स्किल्स क्यों जरूरी है? लोग जितना बोलते हैं उससे 4 गुना तेज सुनते हैं। सुनने की गति 600 शब्द प्रति मिनट, बोलने की गति 150 से 200 शब्द प्रति मिनट। इसलिए अच्छे श्रोता बनने के लिए ध्यान केंद्रित रखना पड़ता है। 80-20 नियम, बातचीत में 80% सुने और केवल 20% बोले। उत्कृष्ट लिसनर बनने के लिए वक्ता क्या कह रहा है इस पर अधिक ध्यान दें। मन में बहस ना करें, जवाब सोचने में जल्दबाजी ना करें। वक्ता की कही बात पर ही प्रतिक्रिया दें, पहले समझें फिर बोलें। निष्कर्ष, आप संबंधों के लिए बने हैं, इसलिए स्वस्थ रिश्ते बनाने के लिए इंटरपर्सनल कौशल विकसित करना बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता इन्हीं कौशलों पर निर्भर करती है।